اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ سیشن، آج کی ہماری یہ کوچنگ کلاس وہ جنرل سائنس کے حوالے سے، چونکہ جنرل سائنس کے حوالے سے زیادہ سوالات متوقع ہوتے ہیں آپ کے وائیو میں، آپ کے ایم سی کیوز لیول ٹیسٹ میں، آپ کے جو معروضی سوالات ہیں آبجیکٹیو سوالات، تو اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ تو جنرل سائنس کے حوالے سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے جیوگرافی کے حوالے سے۔ جیوگرافی یعنی آپ کا جو جغرافیہ ہے، زمین کی جو پیمائش کا علم ہے، اس حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پرسنٹیج کیا ہے، زمین آپ کی جو گلوب ہے، زمین پر پانی اور خشکی کا جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ نے اس کا پرسنٹیج جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ صحیح لکھنا ہے، 29.2۔ 29.2 جو ہے یہ آپ کا خشکی پر محیط ایریا ہے، اور باقی بچا 70.8۔ یہ وہ ایگزیکٹ فگر ہے، یعنی 70.8 آپ کا جو ہے وہ پانی ہے، واٹر ہے، جس میں آپ کے اوشن شامل ہے۔ اس حوالے سے بھی سوالات ہوتے ہیں کہ اوشن اور سیز میں کیا فرق ہے۔ اوشن بڑے سمندر کو کہا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں بحر کہتے ہیں، اور سی چھوٹے سمندر کو کہتے ہیں جس کو ہم بحیرہ کہتے ہیں، یعنی بحیرہ عرب چھوٹا سمندر، اور بحر الکائل بڑا سمندر۔ یعنی آپ کے بڑے سمندر کے لیے اوشن، اگر آپ سے کبھی پوچھا جائے کہ اوشن اور سی میں کیا فرق ہوتا ہے، اوشن بڑے سمندر کو، ایک بڑے زمین پر محیط پانی کے اس بڑے ٹکڑے کو اوشن کہا جاتا ہے، جبکہ چھوٹے ٹکڑے کو بحیرہ کہا جاتا ہے یا سی کہا جاتا ہے۔ تو سی اور اوشن کا جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو ایگزیکٹ فگر ہے واٹر، اور آپ کے جو خشک زمین ہے گلوب پر وہ 29.2%، اور آپ کا واٹر لیول جو ہے وہ 70.8% ہے۔ اس کے علاوہ خلائی سائنس کے حوالے سے، آپ کا جو خلائی سائنس ہے، اس حوالے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس ڈیکیڈ 20ویں صدی کے کس ڈیکیڈ کو دا کمپٹیشن آف اسپیس سائنس کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو 60 کا ڈیکیڈ ہے، 1960 سے لے کر 1970 کا جو عرصہ ہے، یہ کولڈ وار چل رہی تھی۔ کولڈ وار کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، اس کو سرد جنگ کہتے ہیں۔ سرد جنگ امریکہ اور روس کے درمیان، امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان، یو ایس ایس آر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے یہ ایبریویشن پوچھی جائے۔ یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک ایک بہت بڑا ملک تھا جو سرد جنگ میں امریکہ کے ساتھ جو تھا بالمقابل تھا ہر حوالے سے۔ یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی، کولڈ وار۔ واٹ از کولڈ وار؟ یہ ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے، ڈائریکٹ فوجیں ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل نہیں ہوتی، لیکن ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ دشمن کو نیچا دکھایا جائے۔ تو اس حوالے سے اس ٹرمینالوجی کو کولڈ وار یا سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ تو جو 60 یہ جو آپ کے 60 کا ڈیکیڈ ہے، یہ جو دہائی ہے، ڈیکیڈ کو اردو میں دہائی کہتے ہیں، جو 60 کی دہائی ہے، یہ دا کمپٹیشن یا دا وار آف اسپیس سائنس۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے آپ یہ سوالات نوٹ کریں کہ اسپیس وار میں سب سے پہلے رشیا نے اپنا خلائی جہاز بھیجا خلا میں، اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ووسٹوک۔
वोस्टोक 1, वोस्टोक अव्वल को भेजा गया। वोस्टोक ये रशिया का खलाई जहाज था। इस जहाज के खला में जाने के साथ ही पूरी दुनिया में, यानी दुनिया के दो जो बड़े बड़े ममालिक थे, जो दो बड़े बड़े ताकतवर ममालिक थे, उनके दरमियान सर्द जंग शुरू हुई और इसमें कंपटीशन शुरू हुई। कौन सी कंपटीशन? कंपटीशन खलाई जंग का आगाज हुआ और इसमें सबसे पहले जो जहाज भिजवाई गई खलाई जहाज वो वोस्टोक 1 थी। वोस्टोक 1 के हवाले से ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहली खलाई खातून, सबसे पहले द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, ये सवाल आ सकता है। तो रशिया की वेलेंटिना ट्रेशकोवा, वेलेंटिना ट्रेशकोवा वाज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, जो यूरी गागरिन के साथ उन्होंने ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। उसके बाद ये जंग कब इख्तिताम पजीर हुई? ये जंग उस वक्त इख्तिताम पजीर हुई जब अमेरिका का जो खलाई जहाज़ जब उसने लैंड किया मून पर, चांद पर, तो ये मिशन जो था कामयाब हुआ और इस तरह अमेरिका इस सरजंग में जो है वो कामयाब करार पाया। किस हवाले से? आपके स्पेस के हवाले से। तो ये स्पेस के हवाले से वो बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो वेलेंटिना ट्रेशकोवा वाज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस एंड यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट मैन इन स्पेस। अच्छा, इस हवाले से ये भी पूछा जा सकता है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट मवासलात के हवाले से कौन सा सैटेलाइट खला में छोड़ा? तो ये बदर अव्वल है, बदर अव्वल को खला में 1991 में छोड़ा गया था। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि जो आपका कलाशिंकोव है असले के हवाले से, कलाशिंकोव किसने ईजाद किया? तो कलाशिंकोव के हवाले से अक्सर सवालात होते हैं क्योंकि ये नाम उसी शख्स के नाम पर रखा गया है। तो मिखाइल कलाशिंकोव वाज द इन्वेंटर ऑफ कलाशिंकोव। ये कलाशिंकोव नहीं है, ये कलाशिंकोव है। अक्सर रशियन जो इन्वेंटर्स हैं इनके आखिर में वी आता है, जिस तरह वेलेंटिना ट्रेशकोवा। तो ये मिखाइल कलाशिंकोव वाज द इन्वेंटर ऑफ कलाशिंकोव, और ये तारीख इंसानी में सबसे ख़तरनाक तरीन हथियार है जो कलाशिंकोव है। इसने जो है ये अफगान वार में जंग का पांसा जो है वो पलट दिया। हालांकि ये उनकी अपनी ईजाद थी लेकिन अफगानों के हाथ आई और ये टेक्नोलॉजी अमरीकियों ने भी जो है वो अमरीकियों को मुंतकिल हुई, जिसकी वजह से जंग का जो है वो पांसा पलट गया। इसके अलावा नोबल जो इनाम है, नोबल इनाम के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि नोबल इनाम मुख्तलिफ शोबों में दिया जाता है। अमन के शोबे में दिया जाता है, फिजिक्स के शोबे में, केमिस्ट्री के शोबे में, मुख्तलिफ शोबों में दिया जाता है। ये किस साइंसदान की याद में दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल, इसका ताल्लुक किस मुल्क से था, या नोबल इनाम किस मुल्क का सदर देता है? तो नोबल इनाम स्वीडन का सदर देता है। हमेशा आप देखिए जब नोबल इनाम की तकसीम का वक्त आता है तो ये तकरीब स्वीडन में मुनक्किद होती है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल का जो ताल्लुक था वो स्वीडन के साथ था। और अल्फ्रेड नोबल के हवाले से ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या ईजाद किया? इन्होंने डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट, व्हाट इज डायनामाइट? डायनामाइट जो है ये बारूद है जो मुख्तलिफ किस्म के असलों में इस्तेमाल होता है। इसलिए जब उनको पता चला कि मेरी जो ये ईजाद है ये इंसानियत के लिए नुकसानदा होगी, तो इन्होंने अपना तमाम जो सरमाया है वो वक्फ किया इंसानियत के लिए। अमन का नोबल इनाम, केमिस्ट्री का नोबल इनाम, मेडिसिन का नोबल इनाम, यानी इस तरह के मुख्तलिफ नोबल इनाम के हवाले से इस हवाले से आपसे पूछा जा सकता है नोबल क्या। इसके अलावा मलेरिया के हवाले से, ये जो डिजीज़ है मलेरिया के हवाले से पूछा जा सकता है कि मलेरिया, व्हाट इज मलेरिया? तो आपने बताना ये है मलेरिया कंपोज्ड अपॉन टू वर्ड्स मला एंड एरिया। मला, जिसमें मला की मानी है बेड, मला
एरिया, एरिया क्या मानी है हवा। चूँकि कदीम ज़मानों में मलेरिया के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये बुरी हवा, जहाँ पर जोहड़ होते हैं, जहाँ पर बेड एयर होती है, जहाँ की आवाज़ साफ नहीं होती है, जिस हवा में कसाफत ज़्यादा होती है, इस हवा की वजह से मलेरिया फैल जाती है। लेकिन बाद में पता चला, ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। बाद में साइंस ने जब तरक्की की तो फिर ये मालूम हुआ कि प्लाज्मोडियम जब मच्छर इंसान को काट लेता है तो प्लाज्मोडियम मुंतकिल हो जाता है, पेनिट्रेट करता है इन द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से इंसान को मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया के हवाले से आपने बताना ये है कि कंपोज अपॉन 2 वर्ड्स मला एंड एरिया विच मीन्स बेड ईयर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट करंट, ये जो बिजली का करंट है इसकी मुख्तसर डेफिनेशन वो क्या है। तो करंट मुख्तसर जो डेफिनेशन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज कॉल्ड करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इज कॉल्ड करंट। इस हवाले से ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो ब्लड है, जो इंसान की ब्लड है, ये एक अच्छी मौसल है, ये एक अच्छी मौसल है किस चीज़ की, करंट की। तो आपने उस पर टिक पर जो है जी हाँ उस पर आपने टिक करना है कि ये इट्स अ गुड कंडक्टर, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, ये एक अच्छी मौसल है, करंट इससे पास हो जाता है। इसके अलावा दीमक के हवाले से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि दीमक जो लकड़ियों को खाती है, ये एक ग्रुप है। दीमक को अंग्रेजी ज़बान में क्या कहा जाता है, तो दीमक को अंग्रेजी ज़बान में टर्माइट्स कहा जाता है, TRMITS, टर्माइट्स। अंग्रेजी ज़बान में दीमक को टर्माइट्स कहा जाता है। इसके अलावा इसी सर जंग के हवाले से, दूसरी जंग आज़ीम के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, या एटमिक टेक्नोलॉजी के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि एटमिक टेक्नोलॉजी सबसे पहले जब आजमाई गई, जापान के 2 शहरों पर बमबारी की गई, पहले बम का क्या नाम रखा गया था, निकनेम, और दूसरे बम का क्या नाम रखा गया था। तो पहला बम जो गिराया गया हिरोशिमा पर, उसका नाम जो था वो लिटिल बॉय, छोटा लड़का था, जबकि जो दूसरा बम अगस्त में 1945 को गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था। लिटिल बॉय पहला बम और फैटमैन वो आपका दूसरा बम था। इसके अलावा आपसे CTBT के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान जो है इसका मेंबर है, दस्तखत कर चुके हैं। इस तरह के ममालिक जो एटमी टेक्नोलॉजी रखते हैं, जो एटम बम बना चुके हैं, जो एटमी कुव्वत हैं, ये CTBT के मेंबर हैं। तो CTBT स्टैंड फॉर कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये वो मायदा है कि जिस मायदे के तहत जो है न्यूक्लियर पावर की शेयरिंग नहीं हो सकती है दूसरे ममालिक के साथ, तो इस मायदे को जो है वो CTBT जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा एब्रेविएशन के हवाले से MBBS के हवाले से पूछा जा सकता है। तो MBBS हमारे जो डॉक्टर हजरात है वो MBBS करते हैं, तो वो जो है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके अलावा आपके जो खलाई साइंस है, इस हवाले से ये भी सवाल किया जाता है कि मौजूदा जो दौर है, आपका जो मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर है, कौन से मिशन जारी है इस वक्त, किस सियारे पर या चांद पर या सूरज पर, कहाँ पर मिशन भेजे जा रहे हैं। तो ये मिशन मार्स पर भेजे जा रहे हैं। कहाँ पर, मार्स, MARS, मार्स। तो मार्स के हवाले से ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कौन सा सियारा, कौन सा प्लेनेट कहा जाता है। इसको रेड प्लेनेट कहते हैं, रेड प्लेनेट, सुर्ख सियारा कहते हैं। और ये मार्स मिशन जो है ये दुनिया का नासा का सबसे जो यानी इस हवाले से सबसे ज़्यादा लागत वाला जो है वो मिशन है। नासा कोशिश कर रही है कि मार्स पर अपना मिशन भेजे और वहाँ से जो है नादर जो मालूमात है वो इकट्ठी करें। नासा के हवाले से पूछा जा सकता है। नासा मैंने पहले बताया कि आपका जो कोल्ड वार चल रहा था, इसमें नासा ने अहम रोल प्ले किया अमेरिका के लिए। तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी या अथॉरिटी एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक कहते हैं फ़ज़ाई को, खलाई को। तो ये अमेरिका की कौमी एजेंसी है नासा। तो
یہ وہ بیسک انفارمیشن تھی جو سائنس کے حوالے سے، جنرل سائنس کے حوالے سے آپ سے وائیوا میں آپ کے ایم سی کیوز لیول ٹیسٹ وغیرہ میں جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔